चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सुमंत। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज शनिवार है, तो विल डू द सेम थिंग, 2 वर्ड्स। तो आप लोग सबको ही अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास विल डू 2 इडियम्स। तो ये अपना प्लान है। तो जैसे जैसे रेडी होंगे हाथ खड़ा करेंगे, अपना दो दो वर्ड सुनाएंगे। चलिए अतुल, शुरू कीजिए आप। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटे। Today my two word is cow and happy. हम्म। The cow is a animal. हम्म। It has four legs. हम्म। It has two eyes. हम्म। It has 2 ears. हम्म। The cow is a useful animal. हम्म। The cow is a domestic animal. हम्म। It has a large body. हम्म। I am really happy today. हम्म। I am very happy that I won. I have हम्म। seen them happy after. हम्म। I hope you two are happy toes. हो गया सर, थैंक यू। वेरी नाइस। चलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, शुरू कीजिए भाई। अतुल हाथ नीचे कर सकते हैं चाहे तो। हम्म। तो चलिए, अब ऐसा है कि ये तो दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ द रूटीन, सो यू गाइस शुड नॉट टेक टाइम टू स्टार्ट। चलिए अनमोल बोलिए बेटा। अनमोल, ये जो भी है आदर्श नगर से। Yes, sir, Anmol. हम्म। Today's my two word is important of trees and water. हम्म। Trees are very important to our life. हम्म। Trees give us fruits or oh, give us fresh air to ब्रीद। ब्रीद। breathe. हम्म। Trees give us fruits and vegetables. हम्म। Trees give us wood, paper, and medicine. हम्म। Trees give us shade. क्या फिर? शेड। शेड, शेड मतलब छाया। Trees give shelter to animals and birds. हम्म। And my second word is water. हम्म। Water is an natural resource. रिसोर्स। हम्म। Water is called life. हम्म। It is essential for all living beings. एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी। एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। Life is not possible without water. हम्म। About 71% of the Earth's surface covered with water. हम्म। We get water from many sources like rain, lakes, rivers, एटसेट्रा, ईटीसी। That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी चलते हैं नैतिक के पास। Good evening, sir. गुड इवनिंग Today बेटा। our two today my two words are community and confident. हम्म। The first word is community. That sentences are: a community is a group of people living together in one place. हम्म। Community can be small like a village or larger like a city. A हम्म। community helps people feel connected to each other. हम्म। People in a community often share common goals. हम्म।
Community can be based on geographical condition, cultural, and its interests. Hmm. A supportive community can make life easier for everyone. Hmm. Good communicative strengths is a communication. Neighbors are an important part of local community. Hmm. A healthy community provides safety and support. People in a community often share its resources. Hmm. Protecting the environment benefits the entire community. Everyone has a role to play in a community. Community can be built on trust and cooperation. Hmm. Healthcare facilities are vital for a healthy community. Hmm. And so my second word is confident. That Hmm. sentences are being confident means believing in yourself. Hmm. Confidence helps you face challenge bravely. A Hmm. confident person speaks clearly and calmly. Confidence Calmly. grows with Calmly. con- Hmm. calmly. Yes, sir. Confidence grows with practice and experience. Hmm. Smiling makes you look more confident. Hmm. Confident people are not afraid to try new things. Hmm. Good posture shows confidence. Hmm. Confidence comes from knowing your strengths. Hmm. Facing fear boosts confidence. Confidence is not about being perfect. Hmm. Learning new skills can make you feel confident. That's all, Hmm. sir. Thank you. बहुत बढ़िया। अतुल, आप हाथ नीचे कर लिए बेटा, आपने बोल दिया ऑलरेडी, तो सो दैट आई वुड नो। ओके, पूजा बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Today my two words are hobby and important. Hmm. My first word is hobby. Hmm. Their sentences are my hobby is cycling. Hmm. Sister's hobby is playing the guitar. Hmm. Brother's hobby is collecting coins. Hmm. Your hobby is reading book. Hmm. My friend's hobby is playing kabaddi. Hmm. My younger brother's hobby is playing football. Hmm. My hobby is playing mobile. Hmm. Playing with Clark's hobby mobile. is drama. Hmm. My second word is important. Hmm. Their sentences are my family is most important for me. Hmm. Some important people waiting for us. Hmm. Sleeping is most important for health. Hmm. Bihar is an important historical place. Place. Hmm. Books are very important for students. Hmm. You are important to him. Hmm. My parents are important to me. Hmm. A study is important for all students. That's all, sir. Hmm. बहुत बढ़िया। तो सभी लोग देखिए, व्हेन यू स्पीक, कोशिश कीजिए कि थोड़ा स्लो जाए और फील द वर्ड्स। ओके, जब जब बात करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि यू कीप सम, यू नो, अ सेकंड गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स। मतलब जब आपने कुछ कहा, आपका एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप रखिए। यू विल सी द पावर दैट इट ब्रिंग्स विद द कम्युनिकेशन स्किल। ओके, दैट गैप ब्रिंग्स, यू नो, इनटू योर कम्युनिकेशन। ओके, चलिए बाकी लोग भी हाथ खड़ा कीजिए, बोलना शुरू कीजिए भाई। एंड माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस वुड बी, सबको हाथ खड़ा करके रखिए। ऐसा नहीं कि छोड़ो बाकी लोग बोल रहे हैं हम सुन के चले जाएंगे। यहाँ पे कोई प्रवचन करने नहीं आया, सब कोई पार्टिसिपेट करने आया है। तो कोशिश कीजिए कि जब तक पार्टिसिपेट नहीं किया छोड़ेंगे नहीं। सही गलत का टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए भैया, अगला कौन है? सन्नाटा क्यों है आज? नैना और आदर्श नगर से और कुछ नहीं बोलेंगे? अनमोल?
No, sir. अभी नहीं कोई तैयार? अच्छा, लेकिन याद दिलाते रहिए। पीयूष, वीर और क्रिस भी ज्वाइन कर गए हैं। वीर और क्रिस, यू हैव टू स्टार्ट। रुचि कुमारी भी है, विकास मंडल भी है। कोई नहीं। तो अच्छा, ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, या मतलब आप लोग क्या सोच के ज्वाइन किए हैं? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम जादू की छड़ी घुमाएंगे और आप लोग सबको अंग्रेजी आ जाएगा। काश ऐसा होता तो हम पहले वो छड़ी अपने ऊपर चलाते, पहले घुमाते और मस्त अंग्रेजी बोलने लग जाते फिर। तो सी, दिस क्लास इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आगे बढ़ के बोलेंगे, उनको उनको सीखने को मौका मिलेगा, वही लोग सीखेंगे। तो इसीलिए मतलब सुनने के लिए ज्वाइन मत कीजिए, बोलने के लिए ज्वाइन कीजिए, है ना? तो चलिए, कोई कोशिश शुरू कीजिए भाई, नहीं तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी टू नो जस्ट कीप रिमाइंडिंग। चलो कोई बोलो भाई, कोई बोलो भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब शर्माने के लिए तैयार है बैठ के। देखिए, विकास मंडल सुनने के लिए ज्वाइन किए थे तो छोड़ के चले गए। आ गए वापस विकास। चलिए भाई, आई वुड वांट यू गाइस टू स्पीक अप, ओके? नहीं तो ये क्लास में बाकी मेरे पास और कोई एजेंडा नहीं, मेरे पास मतलब पढ़ाने का कोई बेटर तरीका है नहीं। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू स्पीक अप, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन लर्न। अगला कौन है? वीर और क्रिस? चलिए Yes, भाई, sir. बोलिए। That today my two words are tabulation and intellectual. हम्म My first word is tabulation. My हम्म sentences are during the war, she faced a great tribulation. He हम्म have just came out of a tribulation. हम्म I think they are facing a tribulation. हम्म He should give him advice to came out of tribulation. हम्म Tribulation means trouble. हम्म So my second word is intellectual. हम्म My sentences are he is an intellectual child. हम्म Albert Einstein was an intellectual person. हम्म Most students are intellectual in this area. हम्म Intellectual don't means that you are intelligent. हम्म Intellectual means deep thinking. हम्म Every successful person have a power of visualization that he is an intellectual. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। क्रिस भी है आपके साथ? So he will be back soon. ओके, ऑल राइट। और कौन बोलना चाहेंगे? बोलिए काजल, मुनी कुमारी। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today two words are remember and wrong. My first word is remember. हम्म Their sentences are do you remember me? I remember what that हम्म fall back. I cannot remember your name. हम्म I remember present. Remember holidays. हम्म I remember हम्म the first time I went to class. My second word हम्म is wrong. Their sentences हम्म are he went to the हम्म wrong house. I entered हम्म the numbers wrong. She हम्म speaks wrong. I don't like hearing wrong. I don't हम्म speak wrong. That's all, हम्म sir. बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन बोलना चाह रहे हैं?
देखिए यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। वी हैव विकास। सुनैना आप नहीं बोल रहे बेटा? सुनैना तो बोलती है, आज तो तुम बिल्कुल चुपचाप है। ओके, सो वी हैव विकास, शिवराज, सत्यम, रुचि कुमारी, प्रिंसेस साहिनी, साहनी, इतने सारे लोग हैं। अब बोल कौन रहा है? सबसे बुजुर्ग आदमी मिस्टर वीरेंद्र कुमार। अरुला गुप्ता भी हैं, जितेंद्र मिश्रा भी हैं। तो देखिए आप लोग को कहानी सुनाना पड़ेगा थोड़ा। अब कहानी ये है कि आप लोग में से कितने लोग हमको जानते हैं पता नहीं, लेकिन जानना जरूरी है कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं, और आप लोग साथ में हम क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हैं, right? तो हम आप लोग के बीच से ही एक बच्चा है जो जो हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड से पढ़ा था, बुनियादी पाठशाला। आप लोग पता नहीं अभी बुनियादी पाठशाला है कि नहीं। हमारे टाइम में बुनियादी पाठशाला था जो गांधी जी ने खोला था मुफ्त की शिक्षा के लिए। ना तो मेरे पिताजी के पास उतना पैसा था कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाते, नहीं मेरी इतनी सामर्थ्य थी या क्षमता थी कि मैं ट्यूशन ले पाता या कुछ कर पाता। ठीक है, तो इंग्लिश तो मतलब दूर का चीज है। तो 8वीं 9वीं क्लास में पहली बार मैंने इंग्लिश का एक सेंटेंस बोला था, दैट वाज माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। तो मतलब इंग्लिश में हाथ तंग मेरा भी था। तो हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो लोग भी इंग्लिश बोलने में या कैसे बोलेंगे टाइप से वाला सिचुएशन में से गुजर रहे हैं अगर, तो मान के चलिए कि इंग्लिश सीखने के लिए और कोई तरीका है नहीं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, मतलब दैट्स द ओनली वे यू कैन लर्न। और हम भी वैसे ही सीखे हैं। मतलब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद में झुंड बना के दोस्तों के साथ में हम लोग टूटा फूटा इंग्लिश बोलते थे, जहाँ पे बाकी जगह के लोग थे, साउथ के लोग थे और दिल्ली साइड के लोग थे जो लोग कि काफी अच्छा इंग्लिश बोल पाते थे, अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे थे। तो अपना हालत बहुत खराब था, लेकिन कोशिश करते करते आई मीन आई कुड बीट दैट फियर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, और आज के डेट में मतलब जानते ही होंगे, आई एम हाफ अमेरिकन सिटीजन। तो मतलब यूएस का, अमेरिका का नागरिक बन चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि ये मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना कि अमेरिका का नागरिक कैसे बनना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इंग्लिश इज समथिंग दैट यू वुड नीड एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि बाहर आप जब नौकरी खोजने के लिए जाएंगे, अपना करियर को सेटल कर रहे होंगे, उस समय में जितना भी इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। तो इसलिए इसलिए आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं कि भाई चलो ठीक है, जितना हम अपना स्ट्रगल करके सीखे हैं उससे आप लोग को अगर कुछ फायदा होता है तो दैट इज व्हाट दिस क्लास इज फॉर। लेकिन हमको थोड़ा बुरा लगता है व्हेन आई सी यू गाइस डोंट पार्टिसिपेट। या क्योंकि यहाँ पे क्लास में आप देखेंगे जो भी बच्चे बोल रहे हैं या बोल पा रहे हैं, दे आर एबल टू डू सो बिकॉज दे हैव लेफ्ट नो देयर फियर ऑफ स्पीकिंग बिहाइंड। मतलब उन लोगों ने अपना इंग्लिश बोलने में डर लगता है उसको पीछे छोड़े हैं, तो दैट इज हाउ दे आर एबल टू स्पीक। तो आप लोग अगर सिर्फ मतलब जस्ट आपके पास डेटा है, आपके पास मोबाइल है, इसलिए क्लास में ज्वाइन कीजिए। आप क्लास तभी ज्वाइन कीजिए व्हेन यू सी अ रीजन एंड मोटिवेशन फॉर डूइंग सो। ठीक है, तो सिर्फ क्लास में अब किसी ने बोल दिया कि अब नैतिक ने बताया कि सर एक क्लास लेते हैं तो हम चले जाते हैं क्लास में, ऐसा नहीं है। मतलब नैतिक का एग्जाम्पल सिर्फ मैंने लिया था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बी माइंडफुल ऑफ योर टाइम। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास विदाउट पार्टिसिपेटिंग, यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम एंड योर डेटा बोथ। टाइम इज मनी, डेटा इज मनी एज वेल। डेटा भी फ्री में नहीं आता, डेटा के लिए आपको पैसा स्पेंड करना पड़ता है, राइट? तो क्लास में जब आइए तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम ये समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग को ऐसा होता है कि भाई चलो 2-4 क्लास सुनेंगे फिर हिम्मत आएगा उसके बाद बोलेंगे, लेकिन आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू वेट फॉर? बोलिए। मतलब गलती होने पे सही होने पे क्या अंतर पड़ता है? गलती करके तो सीखते हैं। तो चलिए ये तो मतलब
ये तो टीचर का रिमार्क था, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस कि इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल काम नहीं है। आई मीन यू कैन ट्राई। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे नहीं बोले हैं प्लीज हिम्मत जमा कीजिए और हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए। सही गलत से अंतर नहीं पड़ता है, गलत बोलेंगे तो उसको करेक्ट करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। और नहीं बोलेंगे अगर तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग में से जो लोग भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और नहीं बोलेंगे सोच के ही ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो ऑन करके मुस्कुराने, दूसरे 4 लोग को हाय बोलने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो प्लीज डोंट ज्वाइन। चलिए क्रिस बोलिए बेटा। Okay, sir. Today, my two words are giraffe and universe. My first word is giraffe. Giraffe is have a largest net animal. Giraffes are tallest animal. My second word is universe. The universe is big and endless. We have not even discovered of 0.1% of universe. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए और कौन बोलना चाहेंगे? सुनैना बोलिए बेटा। Today my word is change. Their sentences are: a lot has changed in our country. There has been some change from the past today. Something has changed my house. There has been some change in my English Speaking. speaking. My room has changed a lot. I have changed. That's all, sir. बहुत बढ़िया। See, this is what I was talking about. Sunaina mentioned, right? A lot has changed in my life. My English speaking skill has changed. So that is what will happen for each one of you. जो लोग भी बोलेंगे, it will change for you. जो लोग नहीं बोलेंगे, प्रवचन सुन के जाएंगे, nothing will change for you, that I can guarantee. Okay, चलिए, who is going next? कोशिश तो कीजिए, अपना नाम, माय नेम इज अमिताभ बच्चन, उतना ही तो बोल दीजिए कम से कम। मेरा तो पहला सेंटेंस वही था। विकास मंडल बोलिए। My name is Vikas Mandal. My village in Minatpur. It class is 6. Reading class 6. I read in class. स्टडी क्लास बोलते हैं। Sir, अब हो गया। उतना नहीं, देखिए आपने विकास अपनी कोशिश किया ना बेटा, that is what is impressive। मतलब आपने देखिए, आप बोलेंगे तो जैसे आपने कहा रीडिंग इन क्लास 6, तो रीडिंग इन क्लास 6 नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आई एम स्टडिंग इन क्लास 6। मतलब जैसे आप एक किताब लेके पढ़ रहे हैं तो आई एम रीडिंग अ बुक, आप नहीं बोलते आई एम स्टडिंग अ बुक। उसी तरह से जब आप किसी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अभी आप 6th क्लास में, तो आप बोलेंगे आई एम इन 6th ग्रेड, आई एम स्टडिंग इन क्लास 6। तो अभी देखिए, जो लोग भी नए ज्वाइन किए उनके लिए बोल देते हैं कि आपको डेली 2-2 वर्ड सीखना है, वो 2 वर्ड का कुछ सेंटेंस बनाना है, और जब पूरा सप्ताह भर में आप 14 वर्ड सीखेंगे, इसमें से 2 वर्ड आके इस क्लास में सुनाना है शनिवार को। ठीक है, रविवार को जितिन, तो अभी सबको वो कोशिश कीजिए और क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जोर नहीं लगा रहे हैं, तो प्लीज क्लास पर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैसा लगा होता है थीटा में। डोंट वेस्ट दैट मनी फॉर जॉइनिंग द क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया विकास, हम चाहेंगे कि आप आगे क्लास में और भी बोले आप। ठीक है, चलिए जितेंद्र मिश्रा से सुनते हैं। My name is Manu Kumar Misra. I am studying in class 8. हो गया सर? हो गया। चलिए, शुरू तो हुआ आपका। गाड़ी को धक्का लगाया आपने, पहली बार गाड़ी थोड़ा सा हिली है, ठीक है। अब गाड़ी को पटरी पे लाना है, तो उसके लिए
आपको डेली 2-2 वर्ड, आप तो ये आपका 2-3 क्लास आप ज्वाइन कर चुके हैं, आपको आपका चेहरा जाना पहचाना है मेरे लिए। तो मतलब हम चाहेंगे कि आप डेली 2-2 वर्ड सीखिए और फिर आके क्लास में सुनाइए, ठीक है? सही गलत का चिंता मत कीजिए, गलत होगा तो सीखेंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चलिए शिवराज बोलिए भाई। शिवराज अपने हाथ खड़ा किया, अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। शिवराज नहीं बोले, रुचि कुमारी आप ही बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Prachi Kumari. हम्म I am studying class 7. हम्म My village is Mainatpur. बहुत बढ़िया। आपने क्या बताया बेटा? साक्षी कुमारी, Prachi Kumari. प्राची कुमारी, सॉरी सॉरी, मेरा माय बैड। तो देखिए, आपने 3 सेंटेंस बोला बेटा, ठीक है? माय नेम इज प्राची कुमारी, आई लिव इन मिनाजपुर, आई एम स्टडिंग इन 7th ग्रेड। आप 3 सेंटेंस बोल पाए। आज से 35 साल पहले हम वो एक सेंटेंस में मेरा पसीना छूट गया था। तो आई कैन टेल यू कि आपकी हालत मेरे से काफी अच्छी है। यू कैन डू मच बेटर। ओनली थिंग दैट यू नीड इज कि थोड़ा सा रेगुलर मेहनत करेंगे, डेली अपने लिए 10 मिनट निकालेंगे और इंग्लिश सीखने की कुछ मतलब नहीं, प्रैक्टिस करें। 2 वर्ड हर रोज, 2 वर्ड सीखेंगे, उसको सेंटेंस बनाएंगे और लोगों को सुनाएंगे, ठीक है? उतना ही प्रैक्टिस करते बेटा, ठीक है? आई डोंट आस्क एनीबॉडी टू स्पेंड आवर्स कि हर इंग्लिश सीखना है तो डेली 2 घंटा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपकी पढ़ाई चलती रहेगी जैसे चल रही है। आपको सिर्फ अपने लिए 15 मिनट निकालना है कि भाई रोज 2 नया वर्ड सीखेंगे, उससे कुछ सेंटेंस बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और सुनाएंगे, ठीक है? Thank you, तो sir. और बाकी दोस्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा या बुरा दोनों ही चीज। अगर बदमाश दोस्त मिल गए तो हम लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बुरा चीज सीखते हैं। अच्छे दोस्त मिल जाए अगर, तो उससे बहुत कुछ अच्छा भी सीखते हैं हम लोग। तो जो जो भी सीख रहे हैं उनको, उसको दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि भाई देखो आज नया ये 2 वर्ड सीखे हैं, सुनाते हैं। हो सकता है उनको मजा नहीं आए, कोई बात नहीं, फिर भी आपका प्रैक्टिस तो हो रहा है ना? ओके, चलिए देखते हैं शिवराज क्या बोलना चाहते हैं। शिवराज बोलिए भाई। बट प्राची बहुत बढ़िया बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन थिंक एनीबडी कुड लर्न, ठीक है? चलिए, विकास मंडल आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका बोला वो हो गया तो चाहे तो हाथ नीचे कर ले, नहीं तो अगर कुछ बोलना है तो सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। माय नेम इज अनुज कुमार मिश्रा। हम्म आई लिव एट मेहनादपुर। हम्म आई रीड इन क्लास 7th। हम्म बहुत बढ़िया, दैट्स बढ़िया, ऑल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो भी बच्चे आते हैं 1 दिन 2 दिन के बाद चले जाते हैं, उनका नाम तो हम भूल जाते हैं। जो लोग रेगुलर रहते हैं उनका नाम याद आता है। तो अनुज, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपका नाम भी हमको याद रहेगा। देखते हैं कौन कौन लोग रेगुलर रहते हैं, है कि नहीं? सर मैं धीरेन्द्र मिश्र के आईडी से आता हूँ, लेकिन अभी मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं मतलब जैसे भी मतलब ज्वाइन कीजिए तो पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, ठीक है? क्योंकि क्लास में सिर्फ आएंगे, मेरा तो ऐसा भी नहीं कि मेरा मुंह देखने को आपको मिलता है, मेरा तो वीडियो भी ऑफ रखते हैं हम। तो मेरा मुंह में देखने ऐसा कुछ है भी नहीं ऐसे खास। तो क्लास में आइए तो पार्टिसिपेट कीजिए, दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट, ठीक है? ओके, चलिए। अभी शिवराज आप कुछ बोल पाएंगे या सिर्फ हाथ खड़ा करके जय जवान जय किसान बोलेंगे? शिवराज आपका हाथ खड़ा है लेकिन आपने कुछ बोला नहीं है अभी तक।
ओके, और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? देखिए, दिस साइलेंस इज नॉट गुड। ओके, चलिए, तो हमको लगता नहीं कि और कोई कुछ बोलने का हिम्मत जुटा पाए अभी तक। तो दैट नॉट बी राइट। ओके, क्लास ज्वाइन करें अगर तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है? whoever joins, my request would be, please participate, please say something, please share your point of view, please share your 2 words। कुछ तो बोलिए, मतलब बकवास करना इज बेटर देन नॉट सेइंग एनीथिंग। मतलब बकवास करना मतलब इंग्लिश में बकवास करना, ठीक है? कुछ तो बोलें, गलत सही कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे कुछ सीखने के लिए ज्वाइन किए, जो लोग मेरा प्रवचन सुनने के लिए, मेरा गाना सुनने के लिए ज्वाइन किए थे, उनका तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। जो लोग सीखने के लिए बैठे थे, उन लोग को हम एक इडियम सुनाते हैं, कुछ सिखाते हैं। एक इडियम मतलब मुहावरा, जैसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना कि दिन में तारे दिख जाना। दिन में तारा तो किसी को दिखा नहीं आज तक, लेकिन उसका मतलब होता है कि जब बहुत धुलाई होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब हम लोग बोलते हैं ना कि उसको इतना पिटाई हुआ कि उसका दिन में तारे दिखने लग गया उसको। आप लोग कॉमिक्स में देखते हो ना कि किसी को कोई घुसा मारा, उसके सर के ऊपर तारा घूमने लगता है, वैसा वैसा वाला। तो दिन उसी तरह से एक इडियम है, मुहावरा है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस उसका ऐसे बोल सकते हैं। आई वेंट ओवर द मून as soon as I realized that I won a lottery. After getting my after hearing my selection for the engineering after hearing my result of engineering test, I was over the moon. I was over the moon when I realized that my father gifted me a phone. I was over the moon after seeing my brother succeed in life. I was over the moon when I saw my students doing very well in exam. तो ओवर द मून का मतलब होता है जब जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है? आई विल बी ओवर द मून व्हेन आई सी एवरीबॉडी इन द क्लास पार्टिसिपेट। तो ये सब एग्जाम्पल था। अब आप में से कोई अगर ओवर द मून के ऊपर सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो प्लीज बनाइए, नहीं तो फिर शिवराज बोलिए। So anybody if you want to, हाँ शिवराज बोलिए, आपने हाथ खड़ा करे बार बार, आप अनम्यूट कीजिए तब बोलिए बेटा। आप सिर्फ हाथ खड़ा करने से तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं अभी, अनम्यूट कीजिए एंड देन बोलिए। नहीं, ओवर द मून के ऊपर कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बताइए, नहीं तो फिर लगता है कि आज का दुकान जल्दी बंद करना पड़ेगा। शिवराज, आपको सिर्फ हाथ खड़ा करने से नहीं होगा बेटा, आप अनम्यूट कीजिए। आपका एक अनम्यूट बटन होता है, माइक्रोफोन का एक साइन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, तब आप बोल पाएंगे, है ना? अभी आपका जो है ये म्यूट है। देखते हैं आपको हम अनम्यूट कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, हम अनम्यूट नहीं कर सकते, आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को, तभी आप बोल पाएंगे। ओके, तो this is not the way I'll be over the moon. When I see you guys join the class and don't participate, it is certainly not a candidate for me to be over the moon. Over the moon मतलब बोलते हैं चांद पे जाना,
उसी तरह से ये मुहावरा का मतलब होता है ओवर द मून का मतलब व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड। सो मैं बोल रहा था कि आई विल बी ओवर द मून व्हेन आई सी यू गाइस डू वेल इन योर एग्जाम। आई विल बी ओवर द मून when I see everybody in the class participating. I'll be over the moon when I see everybody speaking fluent English. तो अगर आप लोग में से कुछ कोशिश करना चाहते हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए। Otherwise, I'm kind of tired of asking the same question again and again. I will let you guys go. Okay, चलिए तब आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं फिर। When nobody wants to speak, there is no point in old guy bothering you guys. हाँ पूजा बोलिए। My idioms is over the moon. My mother gave me new frock over the moon. नहीं, आप बोलेंगे I was over the moon when I got a new frock from my mom or my mother. I was over the moon. I was over the moon. My brother is give me the pen. तो हाँ, तो देखिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको और रास्ता दिखाते हैं हम यहाँ पे, है ना। आप बोलेंगे I was over the moon when my brother gave me a gift. ये जो भी था, है ना। I was But- over the moon when my teacher is a first prize. when my teacher gave me the first prize. आप सही रास्ते पे चले हैं पूजा, बहुत बढ़िया बेटा। My brother was over the moon when my father is give new short. आप ये बोल सकते हैं my brother was over the moon when my father gave him the new shirt. I was over the moon when my sister is give me a new frock. I was over the moon when my father is give me a new car. तो आप बोलेंगे when my father gave me a new car. That's लेकिन all, आप sir. बहुत बढ़िया, आप सही रास्ते पे हैं बेटा, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट प्रिंसेस साइनी हैज टू से। बोलिए प्रिंसेस साहिनी। और पीयूष साहनी, आई थिंक आपने अपना नाम पीयूष साहनी बताया था। बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। पीयूष साहनी, प्रिंसेस साहनी, जो भी नाम से आप हैं, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बेटा। तो ये तो मूक बधिर का न्यूज हो गया भाई। बोलिए प्रिंसेस साहनी, बोलिए। मुनी कुमारी, बोलिए बेटा। Today my idioms is over the moon. Their sentences are I shall jump over the moon for joy. The students were over the moon. I was over the moon with her new bike. That's all, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो और कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि आज मौन व्रत है सबका? ओके, चलिए, आई लेट यू गाइस गो। हम लोग मिलते हैं कल। कल का क्या टॉपिक रहेगा वो हम आप लोग को भेज देंगे ग्रुप में ही। बट अगेन रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ये वाला जो है कोई बाबा जी का प्रवचन नहीं है, ये इंग्लिश का क्लास है। यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो आपको फायदा भी दिखेगा। एंड दैट्स व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू। क्योंकि आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं वो अंग्रेजी बोलने की वजह से आया है, गलती करने की वजह से आया है।
और अंग्रेज लोग को भी अंग्रेजी में हम अच्छे समझा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर इफ यू वांट टू गेट टू दैट स्टेज, माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी मेक श्योर दैट यू ट्राई, you make mistakes, you leave behind the fear of being wrong। उसका मतलब होता है कि अपनी गलती होने का जो डर है उसको पीछे छोड़िए और कोशिश कीजिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। ओके, चलिए तो आज का कक्षा यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, नैतिक हैज जॉइन्ड बैक अगेन। नैतिक, we just learned one idiom, over the moon, which means extremely delighted. If you want to make few sentences with the idiom over the moon, I'll let What you do means that. over the उसके moon? बाद over the moon means when you are extremely happy and delighted. So an example could be, when I realized that my younger brother has become a doctor, I was over the moon. That's an example. I was over the moon when I stood first in my class. I was over the moon when I realized that India has become a superpower and everybody is listening to the country. Yes, sir. Sir, sentences on over the moon, that's are, when I won the lottery, I was over the moon. I was over the moon when I got my dream job. They were over the Zoom, hear about a new baby. He felt over the moon after scoring the winning goal. The team was over the moon with their championship win. I am over the moon about finally finishing my novel. My parents were over the moon when I graduated with honors. The kids were over the moon about their trip is Disneyland. I was over the moon when I got tickets to the concert. Concert. My grandma was over the moon when we visited her. He is over the moon about buying his first car. The couple was over the moon after adopting a puppy. He was over the moon with his first bike. She felt over the moon after receiving a heartfelt letter. I am over the moon about planning my dream vacation. She was over the moon when she found the perfect wedding dress. The entire town was over the moon with the election result. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. And what I liked the most about that was you made so many sentences on the fly, and I felt that you made better sentences than me actually, and that's a unique quality that you have got, Natik. So I must acknowledge and praise you for that. Okay, very well done. बहुत बढ़िया. So again, for everybody else in the class who have a morn breath today, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके लिए जानकारी है कि नैतिक एंड आई, we have gone through similar stage. Maybe Natik was much better off than me. मेरी इंग्लिश बोलने की औकात नहीं थी, ठीक है, जब मैं 7th 8th ग्रेड में था. And I had no exposure, I had no money to even go for such a thing. आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप लोग ज्वाइन करते हो, क्लास है, कुछ सीख सकते हैं. बोल के ही सीखा है हम लोगों ने. As I said, Natik is much better than me. तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए बेटा. दैट्स द ओनली वे यू विल लर्न. अदरवाइज क्लास में आकर के सिर्फ बैठ के रह के सुन के चले जाएंगे, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा. एक ही नुकसान होगा, वो है आपका डेटा में जो पैसा लगा है वो आपका बर्बाद होगा. डोंट वेस्ट दैट. आई एम नॉट अ सुपरस्टार. मेरे को देखने के लिए लोग सलमान खान के घर के आगे लोग लाइन लगाते हैं उसको देखने के लिए, अमिताभ बच्चन के घर के आगे भी. मेरा वैसा कोई औकात है नहीं जो मेरा हमको देखने के लिए लोग अपना पैसा खर्चा करें, ठीक है. तो अगर सीखना है तो क्लास में आइए, नहीं सीखना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है तो प्लीज मत ज्वाइन कीजिए, है ना. ओके, ऑल राइट. तो कल मिलेंगे. कल का टॉपिक क्या रहेगा अभी तक मैंने सोचा नहीं. आई विल पब्लिश दैट इन द ग्रुप एंड देन यू गाइस कैन प्रिपेयर एंड टॉक अबाउट इट. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल. और जितेंद्र मिश्रा, आपका जो वीडियो है रिकॉर्ड होकर यूट्यूब में जाएगा, आपको वो हाथ हिलाते हुए पूरी दुनिया देखेगा, है ना. चलिए, बाय बाय. Bye, sir. बाय.